Namaste and welcome to Simple Education. So in this presentation, we are going to discuss about the two major, we can say the principles given by Henry Fayol, that is unity of command or unity of direction. ये दोनों के बीच में difference क्या है वो देखेंगे. So let us start. So now let us see the all 14 principles of management given by Henry Fayol. So principle of authority and responsibility, principle of initiative, principle of remuneration, principle of order, principle of unity of command, principle of centralization and decentralization, principle of equity, principle of esprit de corps, principle of division of labor, principle of discipline, principle of unity of direction, principle of subordination of individual interest to general interest, principle of scalar chain, principle of stability of tenure. So ये total 14 principles हैं given by Henry Fayol. So over here I haven't written for each of the principle, उनके आगे principles नहीं लिखे हैं, word principle नहीं लिखा है, but it has been understood कि it is these are the principles. Fine, so it's all up to you. If you want to write word principle ahead of each of the principle, you can write. Otherwise आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी वो समझ में आता है कि these are the 14 principles of management given by Henry Fayol. Fine, तो अभी ये पूरा होल पिक्चर आपने देख लिया है कि ये सभी 14 प्रिंसिपल्स है. नाउ आफ्टर द स्लाइड ईच ऑफ द प्रिंसिपल के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कह रहा है. So let us proceed and start with the very first principle, that is principle of authority and responsibility. And just to make you aware कि ये principles it's not necessary कि आपको as per the what I have written is has to be written, that is कि first year, second year and third year, and this has to be going as per the line. Not necessary, but only thing is that कि आपको 14 principles proper याद होने चाहिए, इनके head points आपको याद होने चाहिए. So after discussing the complete 14 principles, we'll be also talking about कि इसको याद कैसे रखा जाए. So this is how I have arranged. Once again I'm telling you, it's all up to you how you arrange these 14 principles and talk about it in detail. So let us now start with the 14 principles one by one. So let us continue the principles of management. I hope you must have heard this proverb. ये proverb आपने सुना होगा कि too many cooks spoil the broth. This means कि बहुत सारे अगर लीड करेंगे एक सूप बनाने के लिए तो वो सभी कुक अपना अपना इंटेलिजेंस अपना अपना क्रिएटिविटी लगाएंगे एंड एट द सेम टाइम अगर एक ही सूप बना रहे हैं तो नेचुरली वो सूप ऑलमोस्ट खराब बनने वाला है. सो ओवर हियर इट हैज बीन सेड कि एक कुक एक टाइम पे एक तरह का सूप बनाए. सो दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज नथिंग बट यूनिटी ऑफ कमांड, which means कि सोल लीडरशिप होनी चाहिए हर एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में. एक हेड हो जिसके अंडर सभी लोग सुने वो पर्टिकुलर टाइम पे या वो पर्टिकुलर इवेंट कंप्लीट करने के लिए. So let us understand. This principle states that the employee should receive command from and be accountable to only one leader at a time. तो एक लीडर लीड करे एट अ टाइम और सभी सबऑर्डिनेट्स या एम्प्लॉयज उसकी बात सुने, उसके ऑर्डर को फॉलो करे. There should be a clear chain of command in the organization. Each employee should know his immediate superior and should receive orders from only one superior. तो अगर बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है तो नेचुरली वहाँ पे क्लियर चेन ऑफ कमांड दैट इज हायरार्की होगी कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा. तो हर एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि उनका इमीडिएट सुपीरियर कौन है और किस तरह से किस से ऑर्डर लेना है so that the things can be completed on time. This principle helps in managing conflicts and avoiding confusion in the organization. तो ये unity of command का principle अगर institution properly follow करता है तो naturally ये discipline environment एक stable और orderly environment create करेगा जहाँ पे good और harmonious relationship होगी between the superior and subordinates.
और इससे क्या होगा यूनिटी ऑफ कमांड से कि बहुत सारे अननेसेसरी जैसे हो सकता है अगर बहुत डिफरेंट सुपीरियर्स होंगे एक ही काम के लिए तो डबल डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो सकता है। लॉट ऑफ टाइम्स इट माइट हैपन कि chaos हो सकता है कोई बोले वो कर रहा था, कोई बोले नो आई वॉज नॉट डूइंग, सम अदर पर्सन वॉज डूइंग, सो द जॉब इज नॉट बिन डन ओनली। सो डिसिप्लिन एनवायरमेंट इनडिसिप्लिन हो जाएगा अगर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगा तो। So this unity of command principle is very much essential to be followed in the educational institution also. Let us see with an example. If in a school, a examination supervisor asks a teacher to immediately complete the examination related work. ठीक है, तो सुपरवाइजर ने कहा, एग्जामिनेशन सुपरवाइजर ने एक टीचर को कि ये एग्जाम रिलेटेड वर्क इमीडिएटली कंप्लीट करके मुझे दीजिए। अब क्या हुआ उसी समय, वेयर इज द HOD इंस्ट्रक्ट द सेम टीचर एट द सेम टाइम नॉट टू डू दैट वर्क। थोड़ी देर बाद HOD से इंस्ट्रक्शन मिलता है, नो नो नीड टू डू दैट वर्क। नाउ द टीचर इज कंफ्यूज कि काम करना है कि नहीं करना है। इट माइट हैपन कि HOD ने ऑलरेडी किसी और टीचर को लगा दिया हो वो पर्टिकुलर वर्क कंप्लीट करने के लिए। सो इट्स ऑलवेज लाइक कि अगर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगा, सोल लीडरशिप नहीं होगा, then the things will not go properly and decision making will be affected, as well as the order of the institution, the smooth functioning of the institution will be affected. So therefore principle of unity of command is very much essential. So this is all related to principle of unity of command. Let us move ahead with the sixth principle. Now to understand the next principle, let us see this particular picture. I hope you are able to see this picture. Fine. So यहाँ पे अगर आप देखिए नीचे जो है बहुत सारे different arrows है and so many different arrows and they are also showing different directions. देखिए कोई इस तरफ दिखा रहा है, कोई towards right, left, ऐसे इस तरह से दिखा रहा है। ये एरोज आपको सही दिशा दिखा रही है कि ये जो व्हाइट वाली जो है जो कि एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखा रही है, which one you think is showing the correct direction, all these arrows or only this particular white arrow? ओके, सो आई होप आपने सही आंसर दिया है कि ऑल दीज एरोज जो है अलग अलग डायरेक्शंस दिखा रही है, विच इज एक्चुअली कंफ्यूजिंग कि जाना कहाँ है। Whereas this particular arrow is showing one direction, okay, we have to work in this direction. So with this thought, let us understand the next principle that is called as principle of unity of direction. So this principle states कि there should be one head and one plan. तो जैसे कि हमने यूनिटी ऑफ कमांड में देखा था कि एक हेड होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन यही कह रहा है कि एक हेड के साथ साथ एक ही प्लान होना चाहिए। बहुत सारी चीजें एक साथ एक टाइम पे नहीं कर सकते हैं, वन प्लान एट अ टाइम। Unity of direction is having a specific goal and a specific plan for achievement of a specific group of people who are accountable for achieving it in a particular time period. तो यहाँ पे ये यही कह रहा है कि जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज है टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल या फिर स्पेसिफिक प्लान को, वो सभी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल या स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ पीपल ही करेंगे और वो अकाउंटेबल भी रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल. So this is कि there should be only one plan of action for all those people who are working for that particular plan. अलग अलग प्लान ऑफ एक्शन होंगे कि अलग अलग ड्यूटीज दी जाएगी, ये भी करो वो भी करो, ये सब नहीं होना चाहिए. वन particular direction has to be given so that all the related activities are working towards achieving that particular common specific goal. This Henry Field principle of management states that the work to be done should be organized in such a way that employees work in harmony towards the same objective using one plan under the command of one manager. तो सेम यही कहा गया है कि यहाँ पे इस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है वर्क को इन दी इंस्टीट्यूशन कि सभी एम्प्लॉयज एक साथ मिलके कोऑपरेशन में, कोऑर्डिनेशन में, हार्मनी में काम करें
to achieve a same single goal और एक प्लान पे वर्क करे अंडर अ पर्टिकुलर अथॉरिटी, दैट इज वन सिंगल कमांड में। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन असिस्ट इन यूनिटी ऑफ एक्शन। तो अगर डायरेक्शन एक होगा, एक ही दिशा में काम करना है नेचुरली, तो एक्शन भी एक ही तरह का होगा, यूनिटी होगी, सभी लोग मिलके वो पर्टिकुलर वर्क करेंगे एंड वो वर्क को अचीव करेंगे। लेट अस सी वन ऑफ द एग्जांपल्स। Educational institutions have a goal to organize annual day event. So, efforts of all the members of the institution is directed towards successfully organizing the annual day. तो ये एक शॉर्ट टर्म गोल है कि एनुअल डे आ रहा है तो एनुअल डे इवेंट होस्ट करना है, तो नेचुरली ये एक डायरेक्शन दे दिया है कि यस एनुअल डे सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। सो ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस, ऑल दोज मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन who are the part of the institution, all this teaching, non-teaching, जो भी इस एनुअल डे के ऑर्गेनाइजेशन में है, वो सभी लोग का एक ही एजेंडा है, एक ही डायरेक्शन है कि एनुअल डे सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करना है। फाइन, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक और एग्जांपल ले सकते हैं जो कि एक ब्रॉडर एग्जांपल है कि अ स्कूल हैव अ विजन टू अचीव होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, so the entire school, all the staff members work towards achieving it. तो जब ये एक गोल ही है, इंस्टीट्यूशन का विजन है कि हर एक स्टूडेंट जो भी बाहर इस इंस्टीट्यूशन से जाए वो completely डेवलप हो, दैट इज एकेडमिक में भी, सोशल लाइफ में भी, इमोशनल लाइफ में भी, वेरियस अदर को करिकुलर एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, ये सभी में वो वेल डेवलप हो, तो क्या होगा कि ये विजन को अचीव करने के लिए ऑल द मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स, टीचिंग सपोर्ट स्टाफ मेंबर, एवरीवन विल वर्क टुगेदर सो दैट द स्टूडेंट्स ग्रो इनटू अ कंप्लीट होलिस्टिक पर्सनालिटी। सो दिस इज की यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की हर एक इंस्टीट्यूशन में एक पर्टिकुलर दिशा दी जानी चाहिए जिससे रिलेटेड सभी इंस्टीट्यूशन मेंबर्स वर्क करें अंडर द कमांड ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सोनल या फिर अथॉरिटी। I hope this is okay. In the coming slide we will just see the difference between the principle of command, principle of unity of command and principle of unity of direction to get a clarity कि क्या है दोनों के बीच में difference. So let's see. So as said, let us see the difference between unity of command principle और unity of direction के principle पे. Let us first discuss the meaning. A staff member should receive orders and instruction from only one supervisor. ये command बोलता है कि एक commanding officer या boss या supervisor या head होना चाहिए। जबकि unity of direction का meaning क्या है? One head, one plan for the group of activities having similar objective or goal. तो जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उसका एक ऑब्जेक्टिव है, से फॉर एग्जांपल एनुअल डे को प्रॉपर्ली सक्सेसफुली कंप्लीट करना, एक पर्टिकुलर गोल है, तो उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही होगी, कहीं पे डांस चल रहा होगा, ड्रामा की प्रैक्टिस चल रही होगी, कहीं पे सिंगिंग की प्रैक्टिस चल रही होगी, बट ऑल दीज प्रैक्टिसेस आर गोइंग टू बी अचीव्ड। ये क्यों चल रहा है? फॉर अचीवमेंट ऑफ अ सिंगल गोल। तो एक हेड और एक प्लान होना चाहिए विच इज सेट अंडर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फाइन, अब नेचर अंडर यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? इट इज रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ द पर्सोनल। तो किस तरह से लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयज काम करते हैं अंडर वन पर्टिकुलर कमांड। एंड दिस अंडर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का नेचर क्या है? इट इज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स और द इंस्टीट्यूशन एज अ होल। सो हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम करे या फिर कंप्लीट इंस्टीट्यूशन एज अ होल। जैसे कि हमने देखा कि अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए तो एवरीवन इज वर्किंग टुगेदर फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब नीड क्या है यूनिटी ऑफ कमांड की? इट इज नेसेसरी फॉर फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच सबऑर्डिनेट to avoid confusion and to have better superior subordinate relationship. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग लीडरशिप के अंडर नहीं होना चाहिए, अलग अलग कमांडिंग ऑफिसर्स नहीं, एक लीडर हो एक पर्टिकुलर टाइम पे और जो इंस्ट्रक्ट करे सबऑर्डिनेट को कि ये काम इस तरह से करना है। Whereas unity of direction बोलता है कि ये क्यों ज़रूरी है? It is necessary to avoid duplication of work,
to avoid wastages of resources and for the smooth running of the institution. तो इसके लिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की ज़रूरत है ताकि हर काम इजीली हो सके विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. So this is all about unity of command and unity of direction. ओवरऑल अगर देखा जाए यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये दोनों प्रिंसिपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. अगर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगी तो नेचुरली यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं होगा, और अगर यूनिटी ऑफ कमांड है तो नेचुरली किस एरिया में वो कमांड दे रहे हैं, किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो कमांड दे रहे हैं उसकी क्लैरिटी होनी ज़रूरी है. So I hope this is clear कि there is a difference between principle of unity of command and principle of unity of direction. Fine, let us proceed to the next principle after this discussion. So now it's time to wind up the presentation. So इस presentation में हमने देखा the difference between the principle unity of command and the principle unity of direction. So ये जो थे basically दो principles थे given by हेनरी फेल. आउट ऑफ द 14 प्रिंसिपल हमने ये दो प्रिंसिपल्स के बीच में डिस्टिंग्विश या फिर दोनों के डिफरेंस क्या है, दोनों की मीनिंग में हमने देखा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंटेंट. इफ यू वांट टू सी फर्दर मोर डिटेल्स अबाउट द 14 principles then do see the videos which are present in the playlist called as educational management of this channel. Thank you and namaskar.